جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہمارا سفر ہوگا مشرقی افریقہ کے ایک مسلم ملک صومالیہ کا۔ صومالیہ جس کا نام ہمارے ذہنوں میں آتے ہی ساتھ ساتھ خون خرابے، غربت کا مارا اور ایک بد نصیب ملک کا تصور بھی ابھرتا ہے۔ یہ باتیں کسی حد تک سچ بھی ہیں۔ ایک تو اس ملک میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں جس سے خوراک کی بہت بڑی قلت پیدا ہوتی ہے۔ لاکھوں افراد ایسے بھی ہیں جن کو اس ملک میں کئی روز تک کھانے کو بھی کچھ نہیں نصیب ہوتا۔ ہاں، آج اس ملک کے حالات بدل رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بنی تنظیمیں اس ملک کو فنڈز فراہم کر رہی ہیں۔ انسانی ترقی کا معیار بھی بڑھ رہا ہے، مگر باوجود اس کے آج بھی اس سارے ملک میں لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ صومالیہ میں پیدا کیے گئے اس بحران کے پیچھے مغربی ممالک کے وہی عناصر ہیں جو شام، لیبیا، عراق اور سوڈان جیسے اسلامی ممالک میں مغربی حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ملک کے ان کشیدہ حالات کے ذمہ داران میں امریکہ اور یورپی ممالک پیش ہیں۔ ان کے بعد سعودی عرب، UAE کے مفادات اور قطر کا ٹکراؤ صومالیہ میں کشیدگی کی وجہ بن رہا ہے۔ مشرقی افریقہ میں بسے اس ملک جس کی سرحدیں شمال میں سمندر پار یمن، شمال مغرب میں جبوٹی، مشرق میں بحیرہ ہند، مغرب میں ایتھوپیا، جنوب اور جنوب مغربی سندھ سے کینیا جیسے ملک سے ملتی ہے۔ صومالیہ کا شمار افریقہ کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کی تقریباً 100% آبادی مسلمان ہے۔ صومالیہ کی سیر پر جانے اور اس ملک کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمارے اس YouTube چینل جانی ٹی وی کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں کی پہنچ سے کہیں مس نہ ہو جائے۔ دوستو، صومالیہ کے اگر ہم تاریخی ادوار پر نظر دوڑائیں تو ہمیں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جہاں آج صومالیہ آباد ہے، یہاں پر 2500 قبل مسیح میں کچھ قبیلے مصر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے اور پھر یہ قبیلے یہیں ہو کر رہ گئے۔ بعد ازاں مختلف علاقوں سے اس ملک میں نقل مکانی ہوتی رہی، مگر بسنے والے قبائل کا تعلق ہمیشہ افریقہ سے ہی رہا۔ جب اسلام کی شمع افریقہ کے کئی ممالک میں جلنے لگی تو صومالیہ بھی اس اسلام کی شمع سے جل اٹھا۔ ہجرت کے کچھ سالوں بعد اسلام صومالیہ اور مشرقی ساحلوں تک پھیل چکا تھا۔ اسلام کے بعد اس خطے پر قائم رہنے والی سلطنت کو ماگادیشو سلطنت کا نام دیا گیا تھا۔ ایک وقت جب دنیا پر عثمانی غالب آ رہے تھے، وہیں پر اندلس کے خاتمے کے بعد افریقہ میں ایک اسلامی سلطنت جنم لے رہی تھی جسے تاریخ نے سلطنت اجوران کے نام سے یاد رکھا ہے۔ مشرقی افریقہ میں سلطنت اجوران اور مشرق وسطیٰ میں عثمانیوں کے زوال کا دور تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ جب مسلمانوں کے زوال کا وقت آیا تو اس ملک پر یورپی اثر انداز ہونے لگے۔ 1884 میں برطانوی اس ملک پر قابض ہوئے اور ملک کو برٹش صومالی لینڈ کا نام دیا۔ 5 سالوں بعد یعنی 1889 میں اس ملک کے کچھ علاقوں پر اٹالین اور کچھ پر فرانسیسیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اٹالین قبضے کے بعد اس ملک کو اٹالین صومالیہ کے نام سے بھی یاد کیا جانے لگا۔ 1 جولائی 1960 کے روز اٹالین حکومت نے صومالیہ کو آزاد کرتے ہوئے اس کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا، جبکہ کچھ ماہ پہلے فرانسیسی اور برطانوی بھی اسی سال یعنی 1960 کو اپنے مقبوضہ علاقوں کو خالی کر چکے تھے۔ 20 ستمبر 1960 کے روز اقوام متحدہ نے اس ملک کی آزاد سالمیت کو مانتے ہوئے اس ملک کو اقوام متحدہ کا رکن ملک بنا لیا۔ آزادی کے کچھ عرصہ بعد تک ملک میں سکون کی فضا قائم رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یورپی اثر اندازی اور آپسی ریشہ دوانیوں سے ملک کی حالت خراب ہونے لگی۔ ملک میں ایک جنگ کا ماحول پیدا ہونے لگا جو آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر یورپی دوبارہ اس ملک میں داخل ہوئے تو وہیں پر اسلامی جہادی تنظیم الشباب بھی حرکت میں آئی اور تب سے پرسکون لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ اگر ہم صومالیہ کے رقبے کی بات کریں تو اس ملک کی آزادی کے بعد جو اس ملک کی حدود بندی کی گئی اس کے مطابق ملک کا کل رقبہ 6,37,657 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے حوالے سے اس ملک کو دنیا کا 42واں بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس ملک کی موجودہ رپورٹس کے مطابق کل آبادی 1,54,42,000 افراد سے کچھ زائد ہے اور آبادی کے حوالے سے اس ملک کو دنیا کا 70واں بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ صومالیہ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے
तो इस मुल्क का मुकम्मल नाम वफाकी जमहूरिया सोमालिया है। मुल्क के नाम का मतलब है दूध से भरा हुआ प्याला। इस्लाम मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी के 99.9% लोग मुसलमान हैं। सिर्फ 0.1% लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी दूसरे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग बेईमाने हैं। सोमाली और अरेबिक मुल्क की सरकारी ज़ुबानें हैं, जबकि मुल्क में अतालवियों के काबिज होने के सबब पढ़ी लिखी अवाम इटालियन और अंग्रेज़ी का बखूबी इस्तेमाल जानती है। मुल्क में कुल बोली जाने वाली ज़ुबानें 20 के करीब हैं। मोगादिशु शहर को मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज़ हासिल है। इस शहर को अरब से आने वाले मुसलमान ताजरों ने 9वीं सदी में आबाद किया था और इस शहर को एक बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। साहिल समुंदर पर होने के सबब इस शहर की अहमियत हर दौर में बढ़ती चली गई और रोज़गार के मौके होने के सबब लोग इसी शहर में बसते रहे। आज इस शहर की आबादी 26 लाख अफराद तक पहुंच चुकी है। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर हरजीसा है। इस शहर को आलमी दुनिया एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर जानती है। यहीं से सोमाली लैंड की तहरीक ने जन्म लिया और 1991 में सोमालिया के इसी हिस्से को सोमालिया से आज़ाद होने के दावे भी होते रहे, मगर आज तक किसी भी दूसरे मुल्क ने सोमाली लैंड की इस आज़ादी को ताहाल तस्लीम नहीं किया है। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर बोसासो है। मुल्क के बड़े और ज़्यादा आबादी वाले शहर तकरीबन साहिल समुंदर पर ही बसते हैं। शहरों में रहने वाली आबादी सुल चुकी है, जबकि इस मुल्क के देहात और वीरानों में बसने वाले कबाइल का बहुत बुरा हाल है। एक रोटी पर सारे ख़ानदान को गुजारा करने वाला वक्त अक्सर इन पर आता रहता है। जब बारिशें होती हैं तो इनके दिन भी फिर आते हैं, वगरना बेरोज़गारी और गुर्बत ही इन जैसे लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने पर मजबूर करती है और फिर दुनिया कहती है कि अल-शबाब एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है। हालांकि जो भी हथियार उठाता है उन्हें किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर होती है। आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान को ले लीजिए, अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तानी तालिबान को ले लीजिए, या आप ISIS को सामने रख कर सोच लें। आखिर इन तंजीमों के वजूद में आने के पीछे कुछ तो कुछ ऐसा कार फरमा होता है जो इन्हें हथियार उठाने पर मजबूर करता है और फिर जो हथियार इनसे कभी वापस नहीं रखे जा सकते। सोमाली लोगों का शुमार दुनिया में सबसे कम पढ़ी लिखी अक़वाम में होता है। इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 37% है। इस मुल्क का हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी बुरी हालत में है। लोगों को टाइफाइड, HIV जैसी मूजी बीमारियां आम हैं। कमज़ोर और सोकड़े की बीमारी इस मुल्क में हर 10 में से 5 बच्चों को लाजमी होती है। यही वजह है कि इस मुल्क में शरह अमवात दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा है। इंसानों की इस मुल्क में जीने की औसतन उम्र 56 साल है। +252 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और .SO इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। सोमालिया का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत पीछे हैं। अगर आपको इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप माइनिंग के शोबे में कीजिए, चमड़े और लेदर के शोबे में कीजिए, या कीजिए फार्मेसी के शोबे में। आपको एक तो सस्ती लेबर वहाँ पर मिलेगी और दूसरा आपका माल भी निकलता रहेगा। टेक्नोलॉजी का अभी वहाँ दूर दूर तक कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। दोस्तों, इस मुल्क का शुमार अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक में किया जाता है। मुल्क की करेंसी को सोमाली शिलिंग कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3.67 शिलिंग हासिल किए जा सकते हैं, जबकि एक भारतीय रुपए के बदले में हासिल किए जाने वाले शिलिंग की तादाद 8.11 होगी। मुल्क की पैदावार 7.9 बिलियन $, है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी $716 है। मुल्क में तर्ज हुक्मरानी वफाकी जमहूरिया है, यानी पाकिस्तान की तर्ज पर सूबों को अलग इख्तियारात हासिल होते हैं, मगर वो भी वफाक के साथ मिलकर चलते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद मुल्क के मौजूदा सदर हैं, जबकि हसन अल खैरी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। मुल्क में सदारती इंतखाबात होते हैं और फिर सदर अपनी मर्ज़ी से ही वज़ीर आज़म का इंतखाब करता है। ये मुल्क पाकिस्तान से 3700 किलोमीटर के हवाई सफ़र की दूरी पर वाक़या है, जबकि पाकिस्तान सोमालिया से वक्त के लिहाज से 2 घंटे आगे भी है। सोमालिया में दहशतगर्द तंजीमों को सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक सपोर्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और कतर के हमायती मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करते हैं।
कतरी हुकूमत मौजूदा हुकूमत को फंड्स भी दे रही है और कर्जा भी। मुल्क के हालात बेहतर और तरक्की की राह पर डालने में कतर का एक अहम किरदार भी है, मगर अपोजिशन जमातों का कहना है कि सोमालिया में मौजूद कतरी सफ़ीर मुल्क का असल हुक्मरान है, यानी अरबों की आपसी रंजशें अफ्रीका के इन ममालिक के अमन को बर्बाद किए बैठी हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाजिरीन का कैंप भी सोमालिया रेफ्यूजी कैंप को ही माना जाता है। मुल्क की बेशतर आबादी मुसलमान है और सोमालिया का शुमार मुस्लिम दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां सुन्नी मुस्लिम सबसे ज़्यादा तादाद में बसते हैं। यूरोपीय ममालिक में सबसे पहले पुर्तगीजियों ने इस मुल्क को देखा था और बरतानवियों से पहले वो भी यहाँ पर पहुँच चुके थे, मगर वो यहाँ कब्जा करने में नाकाम रहे थे। सोमालिया अपने बदनाम समुद्री डाकुओं के नाम की वजह से भी अक्सर खबरों की जीनत बनता रहा है। अंग्रेज़ों के दौरे हुक्मरानी के दिनों में सोमाली बहरी कज़ाक ही थे जिन्होंने गोरों की नाक में दम कर रखा था। जब्बा और शबीला दरिया मुल्क के 2 सबसे बड़े दरिया शुमार होते हैं। सोमालिया का 98% रकबा अफ्रीका जबकि 2% रकबा अरब में आता है। 90 की दहाई में अमन के नाम पर UN मिशन सोमालिया पहुंचा तो अमन की फिजा बरकरार रखने में 6000 पाकिस्तानी फौजियों ने भी अपने फ़राइज़ इंजाम दिए। जनरल मोहम्मद फर्रख एदीद की फोर्सेस ने एक पाकिस्तानी काफ़िले पर सन 1993 में हमला किया, जिसके नतीजे में 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए थे। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान चमड़े, लेदर और कपड़ों की तजारत सबसे ज़्यादा होती है और इन सब के बाद ग़ज़ाई अशिया सोमालिया में भेजी जाती हैं। सोमालिया और पाकिस्तान ने 1976 को अपने सफारती ताल्लुकात कायम किए थे और एक दूसरे ममालिक में अपने सफ़ीर तैनात किए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर जब हमले होने लगे तो सब के सब अमरीकी फ़ौजी वहाँ से वापस चले गए और कुछ अर्सा बाद अमरीका ने सोमालिया से अपने सफारती ताल्लुकात को भी ख़त्म कर लिया। सन 2018 में तकरीबन 20 सालों के वक्फे के बाद दोबारा से दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। सोमालिया में बहरी कज़ाकों की तरफ से असले, खुराक और अमदाद के बहरी जहाज़ों को अक्सर लूट लिया जाता रहा है। यही वजह है कि वक्त पर इमदाद और खुराक ना पहुंचने से अब तक हज़ारों मासूम बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। सोमाली मुस्लिम दुनिया के उन ममालिक में से एक हैं जहां औरतों पर कानूनी तौर पर बहुत कम पाबंदियां हैं। ना तो वहां की औरतों पर हिजाब की कोई खासी पाबंदी है और ना ही खुददारी पर। इसीलिए वहां पर जाकर ऐसा ही महसूस होता है जैसे ये औरतें किसी गैर मुस्लिम मुल्क से आई मालूम होती हैं। ऊँट सोमालिया का सबसे मकबूल जानवर है। ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दूध खुराक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट का चमड़ा पहनने और ऊँट को रोज़गार और आने जाने के मकासद के तौर पर कदरे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस मुल्क में चीते को कौमी जानवर का एजाज़ हासिल है। जंगली जानवरों की ज़्यादातर इकसाम इस मुल्क में भी पाई जाती हैं। मरमकी के दरख्त को इस मुल्क का नेशनल ट्री माना जाता है। दी किंग प्रोटिया फूल को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। स्पर्ब स्टार्लिंग को इस मुल्क का कौमी परिंदा तस्वर किया जाता है। मुल्क की सबसे मकबूल और पसंदीदा खेल फुटबॉल है। फुटबॉल को ही इस मुल्क की कौमी खेल का भी एजाज़ हासिल है। बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और अफ्रीकन मार्शल आर्ट्स इस मुल्क में दूसरी मकबूल खेलें हैं। इस मुल्क में 1990 से शुरू होने वाली खाना जंगी में अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मुल्क की इकॉनमी में चमड़े की सनत, लाइव स्टॉक, शुगर और ज़राअत अहम तरीन है। इस मुल्क में सियाहत का शोबा दूसरे अफ्रीकी ममालिक के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। सियाहत की परवान ना चढ़ने की वजह इस मुल्क में जारी खाना जंगी भी है। हम अपने परवरदिगार से दुआ गो हैं कि खुदाया इस मुल्क के हालात बेहतर कर, मुसलमानों को चैन से जीने का मौका फ्राहम कर, ताकि दूसरी दुनिया से जाकर लोग इस मुल्क में बासानी चल फिर सकें। मुल्क के बासियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों और ये लोग भी अपनी सुकून वाली ज़िंदगी बसर कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। सोमालिया में जाने से पहले हमें इस्लामाबाद में मौजूद सोमाली एम्बेसी से वहाँ का वीज़ा हासिल करना होता है, मगर मैं आपको सोमालिया के हालात बेहतर होने तक वहाँ जाने का मशवरा नहीं दूंगा। दोस्तों, ये थी सोमालिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। हमने सोमालिया के बारे में जिन बातों का तज़किरा इस वीडियो में नहीं किया, उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम सभी रह जाने वाले हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे।
آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لازمی طور پر لائک بھی کیجیے۔ اگلی ویڈیو کون سے ملک پر بنائی جائے ہمیں کومنٹ کرتے ہوئے اپنی تجاویز سے بھی ضرور نوازیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے۔ تب تک کے لیے اپنے اس دوست کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔